हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? हेलो सर, good afternoon, sir. I'm fine, sir. What about you? आई एम आल्सो फाइन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। नाउ बेटा कीप क्वाइट सो दैट वी कैन सेट एन एजेंडा दैट की व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ऐसा नहीं है कि बीच में आप बहुत ज्यादा बोलें, जितना पूछा जाए कम शब्दों में आपको अपनी बातें रखनी है, ज्यादातर आपको समझना है, सुनना है। ओके, so what we are going to learn today in this session, we are going to study English subject. Your English teacher is on leave for the next 4 or 5 days. Meanwhile I would be taking the English class. Okay, समझ में आ गया? I inform you all. How many understood? How many understood what I told? Your English teacher is on leave for next 4-5 days. आपकी जो इंग्लिश वाली मैम है, she is on leave, वो छुट्टी पे हैं 4-5 दिनों के लिए। Meanwhile, तब तक I will taking the class. I will taking the English class of yours. Okay? Sir. Yes, sir. So let us start the session. Let us start the session. Before moving ahead, Yes, sir. before moving to the topic, I would like to confirm that ki till which page number you all have done the speaking junction. आप लोगों ने किया है, कराया है या नहीं? ये पढ़ा दिया गया है कि नहीं? ये सारी चीजें पढ़ा दी है। All these things have been studied, have been taught ना? Okay. So बेटा, today we are supposed to read about the गुरुकुल्स. गुरुकुल्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं? मैम ने पढ़ाया है ये कि नहीं? No, sir. As per your ma'am. No, sir. As per your ma'am, or today we are supposed to read this one. So what I will do, I will make a video. I will make a recorded video for this topic, so that you all have to watch that video. उस वीडियो में इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ाया भी जाएगा, हर वर्ड्स के मीनिंग भी बताए जाएंगे, कुछ और बातें गुरुकुल के बारे में बताई जाएंगी. So you all have to watch the video related for this topic. फिलहाल for all your information, I would like to tell you that ki what about the gurukuls. So let us talk about the gurukuls today itself. In this session, we can talk about the gurukul. What is the gurukul? Have anybody have ever heard about the gurukul or not? कितने लोगों ने इसके पहले गुरुकुल शब्द सुना है? गुरुकुल नाम कभी आपने सुना है या नहीं? Did you heard ever? No, sir. Did you hear ever? Sir, सुने हैं. नहीं सुना है. Okay. नहीं सुने हैं. Okay बेटा. So who have heard? Sir, सुने भी हैं. भी हैं. Who have heard? Who have heard about the gurukul? सुने भी हैं और देखे भी हैं गुरुकुल. Okay. Adarsh Pratap Singh has heard, also have seen, also had seen. Beta Adarsh, you should speak like this way. I have heard about Gurukul. I have seen also Gurukul. In this way you need to speak, na? Sir. When you will start to speak like this? At least you should try. Okay. Adarsh, if you have heard about the Gurukul, can you explain? Can you tell us something about Gurukul? What is Gurukul? Sir, the oldest school in India are called Gurukul. You do not have to copy from the book. What you know, you have to tell about you in your own words. I am not asking from the books. Books के अलावा आप क्या जानते हैं गुरुकुल के बारे में? गुरुकुल क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं. हाँ बताइए. यस जहाँ पे गुरु रहते हो, शिष्य रहते हो. ओके, तो आप बताइए, आप लोग गुरु हैं या शिष्य हैं?
सर शिष्य। शिष्य हैं, कौन कौन शिष्य है और कौन कौन गुरु है? आदर्श गुप्ता, आप गुरु हैं या शिष्य हैं? नो सर। क्या है? कुछ भी नहीं है। Who are you? बेटा, there is some voice from your surrounding. I hope whoever is having the voice their surrounding, they can ask their mother or जो भी आपके आसपास बात कर रही हैं उनको मना करें प्लीज. So let us talk about the गुरुकुल. पढ़ते हैं. सबसे पहले बुक्स में पढ़ने के पहले ही मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं. ओके? Gurukul system of education was the primary education system in ancient India. You know that कि how we are studying. अच्छा, आप इमेजिन करिए आज हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं. आज how you teach, how you learn every day through Zoom app from your home ना. आज कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? अपने घरों पे बैठ के रजाई में ऐसे ताली देवे ऐसे ताली बजाते हुए पढ़ रहे हैं. ताली बजाते हुए पढ़ रहे हैं ना. कैसे पढ़ाई हो रही है बेटा? Whoever is hearing me, you all need to speak, you all need to respond. जब मैं पूछता हूं then you need to speak yes, no. अगर कुछ समझ में आया तो भी बोलना चाहिए. Now I'm asking, मैं आपसे पूछ रहा हूं, how nowadays, आजकल how we study, how you are taking the class, how you learn new concepts. कैसे? From your home through Zoom app, यानी वर्चुअल क्लासरूम होती है ना. वर्चुअली आप लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम आप जुड़ते हैं. ऐसा होता है कि नहीं? सर होता है. But what about 1 year ago? What about 1 year ago? एक साल पहले क्या होता था? एक साल पहले क्या होता था? कैसे पढ़ाई होती थी? आप बताए, कौन बताएगा? Who can tell? ओके, आदर्श बताइए, आप ही बताइए. सर वो सर सीट पर बैठते थे, सर सीट पर बैठ के सर पढ़ाई करते थे. सर स्कूल में सर लंच करते थे. यस, ओके. देवेश तिवारी ने बता दिया. ओके आदर्श सिंह, अब नाउ यू हैव टू टेल हाउ डिड यू स्टडी बिफोर 1 year? पहले हम स्कूल में जाते थे. Yes. स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद सर घर आते थे, सर होमवर्क करते थे. Okay, good. Very good. Anybody else who want to tell how did you study before 1 year ago? Before 1 year? Who can tell? Who want to speak? Amar beta, Swarnima. Also you all can try. Mahima. एक साल पहले कैसे पढ़ाई होती थी? Yes, Amar. सर हम स्कूल थे, सर लंच करते थे. Okay. Okay, good. Amar, stop now. And now, Mahima, you need to tell how we are studying now. आजकल आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं? How do you study? सर घर पे पढ़ते हैं. From the home. Nowadays, you all are studying. You are learning new things from your home. Even all the teachers and students are get together through virtual classroom. वर्चुअल क्लासरूम मतलब जूम ऐप के थ्रू ऑनलाइन सभी लोग इकट्ठा होते हैं. ऐसा होता है कि नहीं? एक साल पहले आप लोग, एक साल पहले क्या होता था? बिफोर 1 year ago, you all come to the school. आप सभी लोग स्कूल आते थे, पूरे स्कूल में दिन भर पढ़ाई करते थे. एंड आफ्टर द स्कूल के बाद क्या होता था? You went to your home. आप अपने घर चले जाते थे. That means कि एक साल पहले क्या होता था? आप हर दिन स्कूल आते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बाद घर चले जाते थे. But what about 1000 years ago? 1000 साल पहले कैसे पढ़ाई होता था? कभी सोचा है? Did you have ever think? Yes sir. आपने सोचा है कैसे होता था? क्या सोचा था आपने? सर बहुत लोग जाते हैं सर, 1-2 साल तक वहीं पे पढ़ते हैं सर. अच्छा, let's say now
Now I will talk an example. I will talk about an incident. How many have seen the Ramayana? रामायण देखे हैं? कितने लोगों ने देखा है? रामायण ने देखा है? भगवान राम ने कैसे शिक्षा ग्रहण किया था? कौन से स्कूल में जाते थे? भगवान राम जी तो पढ़ने गए थे, स्कूल गए थे, शिक्षा लेने गए थे गुरु के पास। स्कूल में वो डेली जाते थे, शाम को चले जाते थे। नो सर, वो सुबह जाते थे, शाम को चले जाते थे घर। ऐसा तो नहीं था ना? नो सर, नो सर। दैट मीन्स कि इन एंशिएंट इंडिया, अब ध्यान से सुनिए, बातें बहुत हो चुकी। दैट मीन्स इन एंशिएंट इंडिया देयर वर अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज डिफरेंट, वो अलग था, आज के अकॉर्डिंगली नहीं था, आज के जैसे नहीं था, दैट वाज डिफरेंट। और उस एजुकेशन सिस्टम को, उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को क्या कहते थे हम लोग? गुरुकुल। और इसे गुरुकुल के बारे में आज पढ़ना है। ओके ओके, नाउ just we have to read the line. The oldest school in India are called Gurukul. Oldest school in India are called Gurukul. बेटा इस लाइन का मतलब ये होता है जो बहुत सबसे पुराना स्कूल है वो गुरुकुल कहलाता है। ऐसा नहीं है। In ancient India all the schools were known as a Gurukul. हमारे पुराने भारत में 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो स्कूल्स होते थे वो स्कूल नहीं कहलाते थे, उनको गुरुकुल कहा जाता था। स्कूल का दूसरा नाम है गुरुकुल। ओके, जैसे स्कूल को आप विद्यालय कहते हैं हिंदी में। यस सर। हिंदी में स्कूल भी बोलते हैं आप फिलहाल। इन द सेम में स्कूल का दूसरा नाम गुरुकुल है। गुरुकुल पहले कहलाता था, पहले स्कूल कम लोग बोलते थे, आज भी लोग कई बार गुरुकुल कहते हैं, बट गुरुकुल का वो सेंस, वो चीजें आज फॉलो नहीं होता कई बार। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर गुरुकुल, वहां पे पढ़ाई का, गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होती थी वो सारी चीजें वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। अब बिफोर मूविंग टू द बुक्स, व्हाट शुड आई टेल अबाउट द गुरुकुल, और बुक्स के हिसाब से चलें? आप लोग क्या चाहते हैं? गुरुकुल के बारे में कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, खाना कहाँ से मिलता था? देयर आर मेनी क्वेश्चंस। आपको गुरुकुल अगर भेज दिया जाए तो क्या होगा? गुरुकुल में कैसे पढ़ेंगे? वही चीजें पढ़ेंगे। द ओल्डेस्ट स्कूल इन इंडिया आर कॉल्ड गुरुकुल। बहुत पुराने विद्यालय, जो पुराने समय में बहुत पहले भारत में जो स्कूल्स होते थे, दैट इज कॉल्ड द गुरुकुल्स। मेनी इयर्स अगो, कई साल पहले, द चिल्ड्रन इन इंडिया यूज्ड टू गो टू गुरुकुल्स। मेनी इयर्स अगो, कई साल पहले। मेनी मीन्स कई सारे, ईयर्स में साल, एगो मीन्स क्या होता है? एगो इज द सिनोनिम ऑफ बिफोर। एगो मीन्स क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। अगर मैं बोलूं मेनी इयर्स बिफोर तो इसका मतलब कई साल पहले। अगर मैं ऐसा बोलता हूं मेनी इयर्स अगो, फिर इसका मतलब क्या होगा? कई साल पहले। गुड। मेनी इयर्स अगो द चिल्ड्रन इन इंडिया used to go to gurukuls. The children in India, भारत में जो बच्चे थे वो क्या करते थे? They used to go to gurukuls. वो स्कूल गुरुकुल जाया करते थे। गुरुकुल जाया करते थे। गुरु means teacher. गुरु means teacher. Just like जिसको आज जिसको आप टीचर कहते हैं ना, that was known as a guru at that time. आज भी कई लोग गुरुजी कहते हैं। ठीक है? कुल इज अ फैमिली। अब गुरु तो आपको समझ में आ रहा है गुरुकुल्स में, बट व्हाट अबाउट कुल्स? कुल इज अ फैमिली। कुल मिस होता है, कई बार हमने गांव में सुना होगा कुल के दीपक, कई लोग कहते हैं कुलदीप नाम इसीलिए पड़ा है कि नहीं? कुल मतलब फैमिली। कुल मिस फैमिली, यानी गुरुकुल, गुरु की फैमिली। गुरुकुल जाते थे यानी गुरु की फैमिली के पास जाते थे। गुरुकुल मीन्स क्या होता है? गुरु की कुल, गुरु का फैमिली। कुल मीन्स क्या होता है बेटा? फैमिली। इन द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अब ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली।
In the Gurukul system of education, students lived in the kul of their guru. Students क्या करते थे? Students lived. Live means क्या होता है? LIVE. Live means क्या होता है? Live means रहना. मैं आपसे पूछता हूँ ना, where do you live? आप कहाँ रहते हो? तो आप अपने गांव का नाम, अपने घर का नाम बताते हैं. तो live means क्या होता है? Students live in the kul. Students कहाँ पे रहते थे? In the kul, यानी in the family of their guru. अपने टीचर के फैमिली के साथ रहते थे, अपने गुरु के कुल के साथ, उनके फैमिली, उनके परिवार के साथ, वहीं पे उन्हीं के घर पे रहते थे. They learned many things. They learned many things. वो बहुत कुछ सीखते थे. They learned many things From their teachers. अपने टीचर्स on the गुरु से teachers. बहुत कुछ सीखते थे. अब also they learned many activities. टीचर क्या करते थे? वहां पे गाइड करते थे, मेंटर करते थे अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को. ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज, डेली जो एक्टिविटीज आप लोग करते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, यानी जब गुरु के पास ही रहेंगे. जैसे आपके आज के डेट में जो पहले गुरु करते थे, वो क्या आपके फादर मदर भी करते हैं आपके घर में, और आपके टीचर्स भी कर रहे हैं. आपकी वाली जो चीजें हैं, दैट हैज बीन टॉट फ्रॉम द स्कूल, बट देयर आर मेनी एक्टिविटीज जो आप घरों पे करते हैं. वहां पे आपके घर वाले बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं आपको ना. यानी जो पहले गुरु करते थे, अभी आज के डेट में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर करने लगे हैं. स्टूडेंट्स वर कॉल्ड शिष्य. तो स्टूडेंट्स क्या कहलाते थे? स्टूडेंट्स वर कॉल्ड शिष्य. The guru and his wife took care of them. The guru, जो गुरु थे, and his wife, और उनकी पत्नी, took care of them. वो उन बच्चों की, अपने शिष्यों की देखभाल किया करती थी कि उनको कोई परेशानी ना हो. अगर तबीयत खराब हो तो उनका उपचार कराया जाए, दवा कराया जाए, इलाज कराया जाए. यानी जो गुरु एंड हिज वाइफ, गुरु और गुरु की जो पत्नी थी, वो बच्चों का देखभाल करती थी. ओके, उनके. When they completed their education, जब जो शिष्य थे वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते थे, they returned home. अपना एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाता था उनका, तब वो क्या होता था? घर वापस आ जाते थे, रिटर्न हो जा रहे थे. अमर, बहुत बातें हो गई. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडी. अगर मैं किसी का वर्ड का मीनिंग पूछ लूंगा तो बता नहीं पाएंगे आप, इतने बड़े हो चुके हैं. And you are not focusing on your study. I do not like this one. Whoever want to study, they have to focus, they have to concentrate. बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बेटा. So this is all about the Gurukul. And now tell me that कि what is the advantage of Gurukul? Gurukul का advantage क्या था? Can anybody tell us? Due to the Gurukul, जब शिष्य और गुरु जब एक साथ रहते थे, एक घर में रहते थे, तो जो बॉन्डिंग थी गुरु और शिष्य के बीच में, वो बहुत ही मजबूत हो जाता था. बहुत ही, जैसे आपको आपके मदर फादर से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है. यू लव मोस्ट योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर लिविंग विद देम. बहुत पहले से जब किसी के साथ आप बराबर रहेंगे तो आप उनसे बहुत ज्यादा आपका प्रेम बढ़ जाएगा. ऐसा होता है ना? सुन रहे हैं सभी? सुन रहे हैं? How are you getting? How many are listening carefully? Show me your hand. Show me your hand. How many are listening carefully? That means कि none of the students are listening, na? Who is listening carefully? Show me your hand. Only Adarsh Pratap Singh. बेटा, आई एम आस्किंग दैट कि कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, वो अपना हैंड रेज करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ. बेटा, इंग्लिश में बोलूंगा तो नहीं समझ पाएंगे क्या? आदर्श गुप्ता, सौरभ सैनी, इंग्लिश पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश समझने की आदत भी डालो बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई आस्क यू ऑल टू रेज योर हैंड. अब हैंड रेज करने के लिए मैं अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो भी नहीं समझ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा?
Okay. The basic advantage of Gurukul was the bond between the Shishya and Guru was very strong because they lived together. Okay. So this is all about the Gurukul. Gurukul के बारे में सभी को समझ में आ गया? Did you understood about the Gurukul? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर गुरुकुल के बारे में पूछा जाए तो क्या कौन कौन बता ले जाएगा इसके बारे में? Who can speak about the Gurukul? How many can speak about the Gurukul? Okay. That means many of you can speak. Okay, Adarsh Pratap Singh already spoken. Okay, I will ask you all to speak about this one. But before that, there is a skill. There is one more skill. You all need to remember this one. बहुत ही जरूरी है. It's very important. So what? What is the skill? Many of you come to school by bus. Many of you come school by bus. Not only by bus, even by van. कई बार आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ बाइक से भी आते हैं, then also you need to take care. तब भी ये बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही important information है आप लोगों के लिए. It is not the information. एक तरीके से सजेशन है, आपको समझाया जा रहा है, आपको फॉलो करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस है ये. ओके, कैन यू टेल मी दैट कि व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द फर्स्ट पिक्चर? हु कैन टेल व्हाट यू हैव टू डू? लुक एट दीज पिक्चर्स. इस पिक्चर्स को देखना है. व्हाट डू यू थिंक्स इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर? इस पिक्चर्स में क्या हो रहा है वो बताना है. Who can tell what is happening in the first picture? Anybody can tell? जो इसको भी बताना है बताए, क्या हो रहा है इस पिक्चर में? सर यस, बताइए बेटा. ठीक है, सर बस चल रही है, सर बच्चे छूट गए. बच्चे छूट गए, अच्छा. एनीबडी एल्स? चलिए ठीक है, बहुत सर अच्छा. बस चल रही है, सर बच्चे दौड़ रहे हैं. यस, बच्चे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, यानी बस चल रही है और बच्चे दौड़ रहे हैं. अच्छा, नाउ टेल मी दैट कि वेदर इट इज अ गुड थिंग. क्या ये सही है? No, sir. इट्स नॉट अ गुड थिंग. नो सर. ऐसे में चोट लग सकती No, है, sir. एक्सीडेंट हो सकता है ना. सर बस के पीछे नहीं दौड़ना Yes, चाहिए, या तो sir. एक्सीडेंट हो जाएगा. यस. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड पिक्चर? यस सर. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज दिस? सर करेक्ट. नो सर. नो What is सर. wrong? What? Now tell me that कि सर करेक्ट. सर करेक्ट. करेक्ट है. क्या करेक्ट है? Who is telling correct? सर बच्चे इसमें बैठे हैं. बच्चे बैठे हैं. सर बच्चे इसमें बैठे दौड़ नहीं रहे हैं. ओके बेटा. सर करेक्ट. आदर्श गुप्ता, आप बताइए. बच्चे बैठे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चे कर क्या रहे हैं? What students are doing? बच्चे कर क्या रहे हैं? जरा ये बताइए, क्या कर रहे हैं? कोई भी बताइए, क्या कर रहे हैं बच्चे? आर्य मिश्रा. सर बाहर हैंड निकाल रहे हैं. सर चोट लग सकती है. जो मन का है वो बोलते, एक बार बोल दिया करो तुरंत. ये मत सोचो कि कोई और बोल रहा है. ठीक है. सर हैंड बच्चा हैंड बाहर निकाल रहे हैं, इसकी वजह से चोट लग सकती है. तो क्या ये सही है? इज इट द गुड वे? इज इट द करेक्ट वे? रॉन्ग है. नो सर. इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. सर रॉन्ग है. ये करेक्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग नहीं है ना? नो सर. And what about in this picture? What about in the third picture? Third picture में क्या है? क्या हो रहा है? चलते हुए बस चल रही है, लेकिन एक लड़का नहीं बैठा. Many people do this. Now stop and listen carefully. मैंने कहा था ना शुरू में, you should listen carefully rather than speaking more. You should listen more so that you can understand. जब आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? जब आप खुद ही बोलेंगे तो जो तुम्हें आता है वही उतना जान पाओगे. अगर आपको सीखना है, कुछ जानना है, तो आपको सुनना पड़ेगा.
अगर बोलने से जो आपको आता है सिर्फ उतना ही रहेगा आपके पास, आप बता देंगे, बस बताने से थोड़ा नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। नॉलेज आपकी कैसे बढ़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके बेटा, in the third picture, the child is trying to board in the bus. अब बस में बैठना है, बस में चढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोर्ड। तब the child is trying to board in the bus, in the running bus. चलते हुए बस में वो बैठने की कोशिश कर रहा है। Now tell me that whether is it the correct way of traveling? No sir. No sir. No. Sir, ऐसे में उसका पैर फिसल सकता है, गिर सकता है, बस के नीचे आ सकता है, चोट खा जाएगा, है कि नहीं, नुकसान हो सकता है। Now tell me tell me about this. What is happening in this picture? correct. Sir, correct. This is the correct. Okay. Correct. Now tell me once again, देवांश शर्मा, आपकी बहुत सारी बातें होंगी इधर उधर जो आप देख रहे हैं ना। अगर बेटा घर पे आया तो इतना पिटाई करूंगा, तुम्हारा जो वीडियो बंद करके इधर उधर कर रहे हैं, वीडियो बंद कर दिया जो, भूल जाएंगे बेटा। इसीलिए कहा जाता है बहुत पिटाई होगी, बहुत मोटा डंडा लेके मैं आता हूं, वो भी लोहे का, आयरन रॉड। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के समय इधर उधर नहीं देखना है, खेलना नहीं है। ओके बेटा, इन द फोर्थ पिक्चर all the students are boarding the bus. बस खड़ी हुई है, लाइन से जा रहे हैं। क्या is it the correct way of traveling by bus? क्या ये सही है? Yes sir. Yes, it is the correct. Yes sir. It is the Yes, correct sir. way. So what you all need to take this one. Okay? So what you need to do in this section, you all have to learn that कि how you need to travel by bus. Not only the bus, आप लोग भी स्कूल आते हैं, जब कभी गाड़ी में बैठे हैं तो कई लोग सर निकाल लेते हैं, कई लोग हाथ निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है, many times it happens that कि the students, the person जो भी अपना हैंड बाहर कर रखा है खिड़की से, उधर से कोई दूसरी गाड़ी आई, टकराए और हाथ टूट गया। ऐसा होता है, अचानक कोई पेड़ आ गया तो भी लगेगा, टूट जाएगा। Yes sir. That means अगर कोई हैंड या हेड अगर आपने बाहर निकाला है फ्रॉम द विंडो, आउट ऑफ विंडो, इफ योर हैंड इज आउट ऑफ द विंडो ऑफ योर बस, so that is not a good habit. उसको आपको बंद कर देना चाहिए। कई सारे बच्चे गाड़ी चलती नहीं, उसी समय बैठने लगते हैं या उतरने लगते हैं। लेट्स से कि इफ यू गाड़ी जब तक स्टॉप ना हो जाए, आपकी बस जब तक रुक ना जाए, तब तक आपको वहां से अपनी सीट छोड़नी भी नहीं चाहिए। बिकॉज होता क्या है, आप सीट से उठे और बस की तरफ, गेट की तरफ आने लगे, तब तक ड्राइवर अंकल ने ब्रेक लगाया और आप आगे नीचे गिर गए। इट हैपेंस, ऐसा होता है। सो ऑल्सो यू ऑल नीड टू रिमेंबर दैट कि अनलेस until your bus get stop, जब तक आपका बस रुक ना जाए, you do not have to stand. आपको बस के अंदर भी नहीं खड़े होना है, और ना ही डिबोर्ड करना है, ना ही बोर्ड करना है, ना ही आपको बस से उतरना है, ना ही बस में चढ़ना है। ओके, there is another thing. many times during your school, जब स्कूल बस से या गाड़ी से आपके जो भी जहाँ पे स्टॉप है, आपके स्टॉप पे आपको उतारा जाता है, तो यू क्रॉस द रोड। आप रोड क्रॉस करते हैं कि नहीं? Yes sir. तो रोड क्रॉस करते समय व्हाट यू हैव टू डू, आपको दोनों साइड देखना चाहिए, इवन इन द लेफ्ट एंड राइट। एक बार लेफ्ट देखिए, फिर राइट, फिर दोबारा लेफ्ट में देखिए, तब आगे बढ़िए। और दौड़ते हुए कभी नहीं। मेनी टाइम्स पीपल क्रॉस द रोड जस्ट बाय रनिंग। जल्दबाजी में सोचते कि गाड़ी आएगी, उसके पहले दौड़ के भाग के निकल जाऊंगा। ऐसे में नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है, व्हेन यू क्रॉस द रोड बाय रनिंग
और आप उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी वाले को थोड़ा पता है कि आप उधर जाओगे या रुक जाओगे या किधर जाओगे, ऐसा नहीं पता चलता ना। वो पता लगा जिधर आप दौड़ रहे हैं ना उधर ही वो उसने अपना गाड़ी घुमा लिया, तो ऐसे में चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो whenever you cross the road, you also need to look in both the direction, in your left and right. Okay? समझ में आया बेटा? Yes, sir. Beta, in this picture, the picture is blurred. So just I'm having the book. Until your bus gets stopped, you should not board or deboard into the bus or from the bus. जब तक बस आपकी खड़ी ना हो जाए तब तक आपको बस की तरफ नहीं आगे बढ़ना चाहिए. ओके? Yes, sir. Many times, let's say कि if any bus is coming, तो ऐसा नहीं है कि जहां रोड पे बस खड़ी होती है वहीं पे जाके आप खड़े हो जाएं. जहां पे बस खड़ा होने का स्थान है, where is the place of the bus, you need to leave that space. You should be having the distance between the bus stop and you. जहां पे बस खड़ी होती है वहां से और आपके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए. ऐसा ना हो बिल्कुल पास में ही खड़े हो और आकर के कहीं गलती से अगर ब्रेक ना लगा पाए ड्राइवर तो नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके? समझ में आ रहा है? Yes. सुनने की बातें नहीं है. Also you all need to follow these things. And thereafter there is one more activity. This is the homework for you all. How do you want your classroom to look? आपको आप कैसा, how do you want मतलब क्या, how means क्या होता है? how means कोई भी बताइए. कैसे? how do you want your classroom to look? want means क्या होता है? चाहना. want means क्या होता है? आप अपना क्लासरूम कैसे दिखे, कैसे चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका क्लासरूम कैसे दिखे? हाउ डू यू वांट, आप कैसे चाहते हैं कि आपका क्लासरूम दिखे? तो वो क्लासरूम आपको बनाना है किसी पेज में. चार्ट पेपर के लिए घर वालों को परेशान मत करना. You do not have to irritate your parents. If anybody are having the chart paper, they can draw their classroom into their chart copy. Otherwise, you also can draw your dream classroom into the page of your English notebook. Okay? आप ड्राइंग की बुक होगा, ड्राइंग की कॉपी होगा, किसी में भी बना के आप पिक्चर भेज दीजिएगा. If whoever is having the chart paper, वो chart paper में बना लेने, drawing paper में बना. सर क्या बनाना है? You have to draw a dream classroom. जैसे आप चाहते हैं आपके क्लासरूम में क्या हो, क्या क्या चीजें हो, all the things you have to draw. Okay? So this is for today. Beta, in the next session we would be talking about the punctuation and word order. बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल. इसमें सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किससे मिलकर के बना होता है. अच्छा, कैन यू टेल मी दैट की कैन यू ऑल टेल मी दैट की व्हाट इज वर्ड? वर्ड के बारे में सुना है? WORD. वर्ड मीन्स क्या होता है? वर्ड मतलब शब्द. वर्ड में हाँ, एक ही बार. आप कई बार बोलोगे तब ऐसा नहीं कि तब मुझे सुने. वर्ड मीन्स होता है शब्द. वेरी गुड. ये वर्ड कैसे बनता है? व्हाट इज वर्ड? ये कौन बताएगा? यू कैन टेल व्हाट इज वर्ड? सर अक्षरों से मिलकर के बना होता है ना. यस सर. ध्यान से सुनिए. आप बनता है 4 मिनट्स बचे हैं. सेंटेंस से. अभी सभी लोग ध्यान से सुने. अब मैं कुछ पूछूंगा नहीं, आपको बताना नहीं है. जस्ट यू ऑल नीड टू लिसन केयरफुली. सौम्या शर्मा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं अभी जरूर पूछने वाला हूं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. हाउ द वर्ड्स फॉर्म. वर्ड्स कैसे बनते हैं? कई सारे अक्षर होते हैं. अक्षर यानी लेटर, अल्फाबेट. इंग्लिश में ABCD या हिंदी में छोटा बड़ा, ये सारे अक्षर होते हैं ना. अब कई सारे अक्षर से जो एक शब्द बनता है, यस सर, दैट इज कॉल्ड वर्ड. शब्द कैसे? मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द बना है AND.
Here you are having the word A and D. And A and D कैसे बना? And कैसे बना? And A and D 3 अक्षर है, इन तीनों अक्षर मिला करके कौन सा शब्द बना? And क्या बना? And B-O-Y, boy. Boy is also a word because there is a 3 words. No, 3 letters. 3 letters हैं. तो यानी वर्ड कैसे बनते? अब ध्यान से सुनिए, कई सारे लेटर जो है, जब कई सारे लेटर इकट्ठा मिलते हैं तो वर्ड बनते हैं. क्या बनते हैं? word. अब और दूसरी बातें ध्यान से सुनिए. दूसरी बातें, कई सारे लेटर बनके वर्ड बनते, कई सारे लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं, और कई सारे वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य. क्या होता है? अब वाक्य क्या होता है उसको समझने का प्रयास करिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज सेंटेंस. बेटा जब आप कुछ कहते हो तब आपके घर वाले या हम लोग समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो. सिर्फ एक ही वर्ड से अगर आप बोलें टीथ, मान लो आपकी कुछ आप अपनी बातें किसी को बताना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक लाइन जो बोलते हैं जिससे आपका एक कंप्लीट सेंस मतलब निकलता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब वो आप अपनी बातें पूरी कैसे कंप्लीटली बता पाते हैं? कई सारे वर्ड का यूज करते हैं, कई सारे शब्दों का यूज करते हैं ना. जैसे मैंने कहा राहुल इज अ गुड बॉय. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ राहुल बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या बोलूंगा? राहुल इज ए गुड बॉय. तो आपको पता है राहुल तो कोई लेटर तो है नहीं, ये क्या है? वर्ड है. इज ऑल्सो वर्ड. ए भी एक तरीके से वर्ड ही है, या लेटर भी आप कह सकते हैं. गुड इज ऑल्सो वर्ड, बॉय इज ऑल्सो वर्ड. यानी इसमें कई सारे वर्ड हैं, कई सारे वर्ड्स मिलकर के एक पूरा कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट सेंस निकाल रहे हैं. कि क्या सेंस निकाल रहे हैं? कि राहुल एक अच्छा लड़का है. दैट मीन्स कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ऐसा नहीं है कि कोई. यस बेटा. फोन में चार्जिंग ना हो. चार्जिंग नहीं है तो फिर डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? बंद करिए, आप जाके पढ़िए, रिकॉर्डिंग देखना. द लास्ट मिनट इज बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो सेंटेंस कहलाता है, और कई सारे लेटर का जो ग्रुप होता है वो वर्ड्स कहलाता है. लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका करेक्ट सेंस ऑफ मीनिंग, कुछ मीनिंग निकले. ओके बेटा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन इन डिटेल. तो नेक्स्ट सेशन में हम यही पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आप लोग को जो एक्टिविटी बोला हूं वो एक्टिविटी करिएगा, और प्रॉपरली यू ऑल ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट द ग्रामर स्टेशन. थोड़ा सा ग्रामर स्टेशन पढ़िएगा. हर दिन 1-2 चैप्टर रीडिंग जरूर किया करिए.